اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تم کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کی پیار بھرے شفقت بھرے سایہ قائم رکھے، تمہارے بچوں کو بھی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور جو بھی اس کلاس میں بیٹھے ہیں جو نہیں بھی آئی، اللہ ان تمام کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ان کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور کوئی پریشان ہر تکلیف میں ہے تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے، اور تمام ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی، ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اور جو بھی مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کر۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیریت اور عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق میں برکت دے، جان و مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ زندگی اس پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اسی طرح بچوں ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، موت کا ایک دن تو معین ہے، مگر کب کیا ہوگا تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا چاہیے، ہمارے اعمال کو سدھارنے کی اور اللہ کی فرمان برداری کرنے کی اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اللہ ہم تمام کو۔ یا اللہ ہمارا شمار صابرین اور صالحین اور بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ تک جانے کے دو راستے مضبوط ترین ذرائع ہیں، ایک نماز اور دوسرا قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نہ تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی، کسی کے گھر جائے تو آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ الحمدللہ۔ غصہ اور نفرت میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، اور ایمان کو دنیا سے لے کر جانا فکر کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت دے۔ اللہ ہی کی مدد سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے۔ انسانوں میں وہ اچھا ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو بے جان روح میں جان ڈال دیتا ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو بے جان روح میں جان ڈال دیتا ہے، مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جب جلتی ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ جب چھوٹے تھے تو بہت سارے باتیں بھول جاتے تھے، تو سب کہتے تھے کہ یاد رکھنا سیکھو، یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہو گئے ہیں، ہر بات یاد رہتی ہے، تو سب کہتے ہیں کہ بھولنا سیکھو۔ کوشش کریں ہمیشہ بدگمانی سے بچیں۔ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی تحقیق کریں۔ کبھی کبھی انسان کا خود اپنی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں بدگمانی ایک دیمک ہے، بدگمانی کفر ہے جو آپ کے تعلق کو کھا جاتی ہے۔ خوش رہیں اچھے گمان کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ بچوں جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کور دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ شادی تو پہلے ہی سے فکس ہوتی ہے، سارے بندوبست بھی الحمدللہ کسی نہ کسی طرح کر لیتے ہیں، مگر بیماری کبھی بتا کر نہیں آتی، اچانک آ جاتی ہے، اور گھر والے اللہ نہ کرے کبھی غریب ہوں، مجبور ہوں اور جلد خرچہ اٹھا نہیں سکتے، تو بچوں کو جس طرح ہم شادی بیاہ میں کور دیتے ہیں اسی طرح کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ایک چھوٹا سا کور کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی
تکلیف میں ہے، کوئی کنڈیشن خراب ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ لفافہ دیکھ کر اس کی جان بچائے اور احسان ثواب بھی کمائے۔ الحمدللہ آپ کے تمام آپ تمام کی کامیابیاں کسی کام نہیں جب آپ جان جائیں، اور احسان ثواب آپ کے تمام کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب آپ کا مالک اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں۔ اللہ کو راضی کر لو، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے۔ اللہ ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے۔ اللہ ہمیں رحمت سے نوازے، ہمیں سکون قلب عطا کرے، ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر اور تقویٰ اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ اللہ ہمیں آزمائیوں سے محفوظ رکھے، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما، اور ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہی رہی ہوئے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما، اور جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جس سے والدین پریشان ہے، یا اللہ ان تمام لڑکیوں کی شادیاں کرا دے اور کوئی دیندار لڑکی دلا دے، اور جس کے گھر میں لڑکے بھی ہوں، جوان لڑکے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ایک دیندار لڑکیاں دلا دے۔ دین کا کیا ہوتا ہے، وہ سلسلہ گھروں سے شروع ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اچھی دیندار بہویں بھی لائیں گے، اور انشاءاللہ داماد بھی دیندار لائیں گے، تو کیا ہوگا، یہ جو دین کا سلسلہ ہے، جو کلاسز چلتے ہیں، یہ کبھی الحمدللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ جو یہ کلاسز شروع ہوئے، اللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے اور کبھی ختم نہ ہو، ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش کبھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اپنی صبح کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن سے کیا کریں۔ یا اللہ ہمیں تیرے فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار کریں، تیرے حکم کی پیروی کرنے کی توفیق دے، جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنے سے یا اللہ ہمیں بچا، سجدے کی توفیق ہم سے نہ چھیننا، ہمیں معاف فرما، ہمیں راضی ہو جا، اپنا کرم فرما، اپنے گھر کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا رب جو ہماری جائز حاجات کو اپنے کرم سے پوری فرما، آمین۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ہر لمحے بھر کے لیے بھی اپنے یاد سے غافل مت کرنا، میرے رب اپنی حکمت عطا فرما اور نیک بندوں کے ساتھ ہمارا شمار کر۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر رب سے طلب کرتا ہے تو وہ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے، الحمدللہ۔ صبر انسان کو رب العزت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، خلوص سب سے زیادہ برکت ہے۔ اللہ سے محبت اور ہمدردی کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے، اور ہمیں دین دنیا کی دولت نصیب فرما۔ ہم کیا کرتے ہیں بچوں، آخرت کی محنت سے ملتی ہے، ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کبھی مت کرنا چاہیے، ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، ہماری توبہ کو قبول کروا، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور تمام مرحومین کو جنت کے فردوس میں مقام پر، آمین یا رب العالمین۔ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، آمین 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 آمین، الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ سب بہنیں آ چکی ہے ہماری، زیادہ تر عورتیں، اور بھی اللہ تعالیٰ سب کو لے کر آئے، الحمدللہ۔ سسٹر میری آواز کلیئر ہے اور اسکرین سب کو دکھائی دے رہا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे पहले हम लोग क्या करेंगे, दरूद पढ़ लेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। अब देखो बहनों, हमारा ये सूरह अल माइदा शुरू था जहाँ पे अहकाम आ रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हलाल है क्या हराम है, इतना डिटेलिंग बहनों हमारा ये चल रहा है। देखो बहनों, यहाँ पे जनरल रूल्स आ रहे हैं, है ना। अब देखो बहनों, सहाबा जो थे ना वो बहुत फिक्रमंद होते थे, हमेशा पूछा करते थे किससे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या हराम है। अभी हराम के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने सब बता दिया, क्या क्या चीजें हराम है, जो हमारी कल आयत नंबर 3 में हम कर चुके है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं आयत नंबर 4 से बहनों, जहाँ पे सहाबा जो है वो पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन सी चीजें जो है वो क्या हलाल है ना, जायज है, कौन सी चीजें हम खा सकते हैं। अब अल्लाह तबारक ताला जो है वो उसके जवाब में ये नहीं कह रहा है कि ये जायज है वो जायज है, मतलब एक लिस्ट नहीं बता रहा है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो इतना बेहतरीन जवाब देता है बहनों। वो क्या जवाब है हम आयतों में जानेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आ जाते हैं हम आयत पर बहनों, यहाँ पे लास्ट में है, वो पूछते हैं आपसे, यानी कि कौन पूछते हैं, सहाबा पूछते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या हलाल किया है तुम्हारे लिए, यानी कि हमारे लिए जो है उनके लिए, यानी कि अल्लाह ताला, सहाबा जो है वो अपने लिए पूछ रहे हैं। ओके, तो अल्लाह ताला जब जो है वो बता रहे हैं कि वो सवाल करते हैं आपसे कि क्या हलाल किया गया है उनके लिए, क्या हलाल है उनके लिए खाने पीने के मामले में। तो अल्लाह तबारक ताला इसका जवाब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कह दो। ओके, आप कह दीजिए, क्या आप जो है वो कह दीजिए, हलाल किया गया, हलाल किया गया तुम्हारे लिए क्या। लिस्ट नहीं आ रही है बहनों, मगर अल्लाह ताला ना एक वर्ड में बता दिए, क्या बता दिए, तमाम पाकीज़ा चीजें जो है वो क्या है, हलाल है। क्या हलाल है, तमाम पाकीज़ा चीजें जो है वो क्या है, हलाल है। अब इसमें क्या क्या आता है बहनों, हलाल कमाई आती है, हलाल जानवर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना, फल जो हम खाते हैं वो भी आता है। और क्या आता है बहनों, यहाँ पे और क्या क्या आता है, वेजिटेबल्स आता है ना, तरकारियां भाजियां, ये सब भी क्या है बहनों हमारे लिए क्या है, हलाल है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है सहाबा जो है और जो है अपने मसले मसाइल पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, एक एक बात पर हम भी क्या करेंगे, गौर करेंगे इंशाल्लाह। अब देखो बहनों, यहाँ पे हमको भी तो रहता है ना कि क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि पाकीज़ा चीजें हलाल है। पाकीज़ा चीजें क्या होता है बहनों, ये भी बात पर हम आ जाते हैं। ओके, अब पाकीज़े चीजें वो होते हैं, ओके, पाक चीजें वो होते हैं, प्योर चीजें वो होते हैं बहनों, जो क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। यानी वो चीजें होते हैं जो इंसान को जो है वो क्या करती है, इंसान को नुकसान नहीं करती है, यानी उसके बदन के लिए, उसके अक्ल के लिए वो नुकसान नहीं करते हैं। उन चीजों को हम क्या कहते हैं, पाकीज़ा चीजें कहते हैं। जैसे कि शराब, अब कोई इंसान आपसे पूछता है शराब क्यों हराम किया अल्लाह ने, तो आप कह सकते हैं कि भाई वो शराब जो है ना उससे नुकसान होता है ना, अक्ल जो है चलती नहीं है इंसान की, है ना, उसका अक्ल बंद हो जाता है, क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, यहाँ वहां लुढ़कता रहता है, हमने देखे हैं शराबियों को, करेक्ट।
تو अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या चाहता है बहनों, वो एक ईमान वाले का भला चाहता है। वो चाहता है कि हम ऐसी चीजें खाएं जो हमारे बदन के लिए, हमारे अक्ल के लिए फायदेमंद हो, बेनिफिट हो, और कुछ भी उससे नुकसान ना हो। हम्म। कितना बेहतरीन मजहब है बहनों। हलाल और हराम की पहचान दे दी। अगर नहीं देता बहनों तो मैं कुछ भी खाती, और अल्लाह ना करे ऐसी चीजें खाती जो मुझे लगता कि जायज है, और वो मुझे क्या होता, नुकसान होता। करेक्ट। अगर बहनों, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं शायद, अगर मैं फॉरेन कंट्री में रहती जहाँ पे पोक हर जगह मिलता है बहनों, हर चीज में वो लोग पोक डालते, यानी कि खिंजीर डालते, तो सोचो बहनों, पिग डालते, उसका उसका उसके तेल या उसका फैट या उसका स्किन, हर चीज वहां पे इस्तेमाल होती। तो वो कहीं ना कहीं बहनों लॉन्ग रन में इंसान को जिस्मानी रूहानी नुकसान करता ही करता है। तो हम अल्लाह का कितना शुक्र करें उतना कम है। वो क्या चाहता है कि हम पाक चीजें खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद अल्लाह ताला और क्या कह रहा है, और कौन सी चीजें जो है वो हलाल है। अब यहाँ पे बहनों सहाबा जो थे अपने पास शिकारी जानवर रखते थे। जैसे कि कुछ के पास कुत्ते थे, किसी के पास चीता था, किसी के पास परिंदे जैसे कि फैल्कन जैसे परिंदे होते थे, किसी के पास जो है वो वाइल्ड कैट यानी कि जंगली बिल्लियां होते थे। जो सहाबा होते थे बहनों, अब वो तो भाग नहीं सकते, एक मुर्गी के पीछे या हिरन के पीछे हम इतना भाग नहीं सकते। करेक्ट। तो क्या करते थे बहनों, वो लोग जो है वो जानवर रखते थे जिनको वो लोग ट्रेन करते थे कि जाके पकड़ो। तो अल्लाह ताला उसका भी जवाब दे रहा है कि वो भी क्या है, हलाल है तुम्हारे लिए। अगर समझ जाओ बहनों, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास एक शिकारी मतलब ऐसा डॉग है बहनों, जिस जो कैसा है, हंटिंग, मतलब मैंने उसको ट्रेन किया है। ओके। मैंने उसको क्या किया है, ट्रेन किया है, पालतू कुत्ता है, मगर वो कुत्ता कैसा है बहनों, शिकार करने वाला कुत्ता है। आज की जैसे कुत्ता नहीं है बहनों, आजकल जो कुत्ते हैं वैसा कुत्ता नहीं है, शिकारी कुत्ता है। ओके। जिसको मैंने पाली और जिसको मैंने ट्रेन की। अब मैं इसको जंगल लेके जाती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि भाई फला हिरन को जाके पकड़। और जब मैं उसको छोड़ू ना बहनों पकड़ने के लिए, तो मैं उसको जब छोड़ने के टाइम पे उस कुत्ते को मैं क्या पढ़ूंगी, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगी। ओके। अब जब ये कुत्ता बिस्मिल्लाह बोलने के बाद वो जाएगा, भागेगा, हिरन को पकड़ के लाएगा। ओके। और जब वो लेकर पकड़ कर अपने दांतों से पकड़ कर ही ला रहा है। ओके। तो बट ऑफ कोर्स कुछ हिस्सा जो है दांतों के निशान रहेंगे उसमें, हाँ। मगर वो हिरन जो है वो मेरे लिए क्या है, हलाल है। और समझ जाओ बहनों, अब ये कुत्ता जब पकड़ के ला रहा था वो हिरन के बच्चे को, दांत में पकड़ के ला रहा था, और लाते वक्त वो हिरन मर भी गया। अच्छा, वो हिरन मर भी गया, तो भी वो हिरन मेरे लिए क्या है, हलाल है। क्यों? क्योंकि जब मैं उस कुत्ते को भेज रही थी, या चीते को या फैल्कन को या जंगली बिल्ली को, मैंने उसको क्या पढ़ा के भेजा, बिस्मिल्लाह पढ़ा के भेजा, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। समझ में आया? जो जुबा करने के टाइम पे पढ़ते ना, वो मैंने पढ़ के उसको भेजी। तो अब जो भी मुझे जानवर का जो शिकार करके लाया, वो मेरे लिए क्या होगा, हलाल होगा। मगर समझ जाओ बहनों, जो मेरा पालतू कुत्ता है, शिकारी वाला कुत्ता है, उसने अब क्या किया सॉरी, उसने अब क्या किया बहनों, जब उसने जो मेरे हिरन को पकड़ा, अब उसने क्या किया, दांत से उसको चबा के थोड़ा बहुत हिस्सा खा लिया। समझ में आया? अब उसको क्या हुआ, टेम्पटिंग हो गया। अब वो क्या किया, उसने उसको पकड़ा ही नहीं, बल्कि उसका कुछ हिस्सा भी खा लिया। तो अब मैं उसको नहीं खा सकती, उस हिरन को मैं नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे कुत्ते ने उसको क्या किया, अजरा सा खा लिया। समझ में आया? मैं भले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के भेजी, मगर क्योंकि मेरा जंगली कुत्ते ने उसको खा लिया थोड़ा बहुत, तो मैं उसको नहीं खा सकती। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इस आयत में आ रही है बहनों। मैं यहाँ पे ये आयतों को पढ़ती हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर पूछ लेना। ओके। तो कह दीजिए हलाल है उनके लिए क्या, पाकीज़ा चीजें। और क्या चीजें हलाल है, और जो हम कहाँ गया, हाँ, और जो तुमने सिखाया है उन्हें, क्या, ओके, जब जो तुमने सिखाया है उन्हें, किसे, जो कि क्या है, शिकारी जानवर है, जो
تم نے سکھایا ہو کس کو؟ وہ شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم، ہاں، اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے، یعنی کہ تم نے جو ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے جو تم کو سکھایا ہے. اٹ از ناٹ کہ میں نے سب کچھ جان لیا، میں نے سکھایا نہیں. جو اللہ نے مجھے سکھایا اور میں نے پھر کس کو سکھایا، تعلیم دی بہنوں؟ وہ جنگلی جانور کو میں نے ٹریننگ کی، اوکے، ہنٹنگ کرنے کے بارے میں سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، پاک ہے. مگر شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں بہنوں کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ بات کا ہم دھیان دیں. اوکے، الحمدللہ. واپس سے پڑھتی ہوں بہنوں کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے، پاکیزہ چیزیں، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، اوکے، شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم، اس میں سے جو سکھایا تمہیں اللہ نے. تو پھر کیا کرو، پھر کھاؤ اس میں سے جو اس نے روک دیا، یعنی کہ اس نے کیا کیا، جو اس نے پکڑ کر لایا ہے تم پر، یعنی کہ جو جانور ہے، جو ہمارا ہنٹنگ جانور ہے، اب اس نے پکڑ کے لے کر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اس نے کیا ہے، روک کے رکھا. یعنی کہ وہ پکڑ کے تو لایا، پر اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو روک کے رکھا. اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. سمجھ میں آیا؟ مگر اللہ کا اس میں کیا کرنا ہے، نام لینا ہے اس پر، ذکر کرنا ہے اللہ کا نام اس پر. تو دو شرطیں بہنوں یاد رکھنا ہے. ہم لوگ تو نہیں کرتے بہنوں، ہمارے نالج کے لیے یہ آیت ہے. دو چیزیں یاد رکھنا ہے، ایک تو بسم اللہ کہنا ہے، اوکے، پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے، وہ جنگلی جانور جس کو بھی ہم نے ٹریننگ کر کے بھیجا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ کھائے نہیں. اوکے، وہ پکڑ کے لانے کے ٹائم پہ مر بھی گیا، اٹس اوکے، وہ چلے گا، مگر وہ اس میں سے کچھ بھی کھائے نہیں. تو ایسے جانور کیا ہے، ہمارے لیے حلال ہے. اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنی حساب یسیرا، یعنی اے اللہ ہمارے حساب کو کیسا کر، آسان کر. اب یہاں پہ ایک ڈرنے کی بات ہے بہنوں. آیت کیا چل رہی ہے، شکاری کی، کیا چیزیں حلال ہے. اب ان باتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر ہی ہے نا بہنوں جو ہم کو کیا کرتا ہے، حرام حلال کا فرق بھی بتاتا ہے الحمدللہ، اور ہم کو خوف الہی بھی آتا ہے نا. مطلب ڈر لگتا ہے کہ اللہ میں جو کھا رہی ہوں، کیونکہ آج کل اتنے سارے فاسٹ فوڈز ہیں، اتنے سارے ریسٹورینٹس ہیں، ہے نا. کتنا ہم لوگ پوچھ پوچھ کے کھاتے نا، حلال ہے کیا بھائی، ہے نا، حلال ہے کیا. کتنا ہم لوگ دریافت کرتے نا وہ ہوٹلس کے بارے میں، کوئی بھی آؤٹ لیٹس ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں. تو ایک ڈر خوف رہنا بہت ضروری ہے بہنوں. ایسا نہ ہو کہ کھانے کے پیچھے اتنے ہم ہو جائے کہ ہم پوچھ بھی نہیں رہے، ہم کو فکر بھی نہیں ہے نا. ضروری نہیں ہے بہنوں حلال اور حرام یعنی ذبح کیا نہیں کیا. وہ لوگ لکھتے تو ہے کہ یہ چکن کا برگر ہے، پر ہو سکتا ہے کچھ اور ہی اس میں میٹ ملا دیا، ہے نا. تو یہ ڈر خوف بھی ہونا بہت ضروری ہے بہنوں. انسان کو کیا ہے بہنوں، ایک ڈر ہی ہوتا ہے جو اس کو کیا کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، کانشیس کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کا دھیان جو ہے نا وہ مطلب اس کا وہ ایک دم اس کا ایک رہتا ہے، توجہ رہتا ہے یہ سب چیزوں میں، ہے نا. تو یہ سب باتوں کا کیا کرے، ہم بھی دھیان دے. اب دیکھو بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تبوک کی لڑائی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو حلال کر دیا تھا، اور پالتو گدھا جو ہوتا ہے، ڈونکی جو ہوتا ہے، اس کو حرام کر دیا. یعنی کہ ہم کو بیسیکلی کیا کھانا ہے بہنوں، جو بھی ہربی ورس، جو بھی ایسا جانور ہے جو ہریالی کھاتا ہے، مطلب جو ویجیٹیبل کھاتا ہے، وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے. اوکے. اور جو کارنیورس ہوتا ہے بہنوں، کارنیورس یعنی کہ جو نان ویج کھاتا ہے نا، جو ایسے اینیملز ہے، وہ کیا ہے، ہم کو نہیں کھانا ہے. جیسے کہ کریب بھی کیا ہے بہنوں، ہمارے لیے حلال ہے. کھیکڑا بھی کیا ہے، ہمارے لیے حلال ہے. اوکے، الحمدللہ. اور یہ جو پگ ہوتا ہے نا بہنوں، یہ درندے میں سے آتا ہے، کیونکہ یہ اومنی وورس ہے. اومنی وورس کیا ہوتا ہے بہنوں، کہ جو
हर्बीवरस भी होता है और कार्निवरस भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवरस कहते हैं। ओमनीवरस यानी क्या, जो तरकारी भाजी भी खाता है और जो नॉनवेज भी खाता है बहनों। जो पिग होता है, जो खिंजीर होता है, वो दरिंदे में आता है, यानी वो दोनों खाता है, वो जो ग्रीन्स भी खाता है और वो जानवर भी खाता है। समझ में आ रहा है? और आज बहनों ऐसे इतने सारे मुसलमान कंट्रीज है बहनों, अल्लाह हमारे मुसलमानों को हिदायत दे कि वो लोग क्या करते ना बहनों, वो लोग जो है वो खाते नहीं है, पोक खाते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शराब पीते नहीं है, मगर वो लोग इसके कारोबार करते हैं बहनों। यानी उनके ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे वो शराब बेचते भी है, पिक के आइटम्स बेचते भी हैं। ओके, ऐसे सुपरमार्केट्स है बहनों उनके पास जहाँ पे वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो अल्लाह हम सबकी क्या करे, मगफिरत करे, हिदायत करे। यहाँ पे देखो बहनों, अल्लाह ताला ना सिर्फ खाने की बात कर रहा है बहनों, मगर कोई भी इंसान अगर ये प्रोडक्ट्स को बेचता भी है तो वो भी क्या है, गुनहगार है। हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं शराब नहीं पीता, मगर फिर शराब की, तुम शराब बेच रहे हो, शराब किसी को लाके दे रहे हो, है ना। अगर तुम नहीं खाते हो, ये इतना ही नहीं आता है बहनों, हम उसके हिस्सेदार भी ना बने, है ना। गुनाहों को सपोर्ट करने वाला, गुनाहों को असिस्ट करने वाला, गुनाहों का साथ देने वाला भी क्या होता है बहनों, गुनेगार होता है। तो वो बात भी हम याद रखें बहनों। इसके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि तकवा इख्तियार करे, डरो अल्लाह से, है ना। और याद रखना कि बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इस खौफ, इस धुनकी में मत रहना कि कुछ नहीं होगा, चलेगा, है ना। डर खौफ रहना बहुत जरूरी है। डरी है जो हमको गुनाह से बचाती है बहनों, और डरी है बहनों कि इंसान अलर्ट रहता है ना, कितना चौकाना हो जाता है। और याद, जब इंसान को पता है कि मेरा हिसाब होने वाला है, तो वो इंसान लापरवाह नहीं हो सकता, है ना। अगर मेरा शौहर अगर मुझे हर महीना 10,000 दे रहे और कभी हिसाब नहीं लेते मैंने, तो मैं तो मतलब मैं इतना आराम से खर्च करूंगी, मतलब मुझे डर खौफ नहीं है। शौहर हिसाब नहीं ले रहा तो मैं कहीं भी कैसे भी खर्च करूंगी, करेक्ट। अगर मेरा शौहर कह रहा है कि नहीं, ये जो 10,000 है मुझे इसका हिसाब चाहिए हर महीने के एंडिंग में, हाँ, और मुझे मेरा शौहर का डर भी रहेगा इस बारे में, तो मैं क्या करूंगी, मतलब एक एक चीज का हिसाब रखूंगी, है ना। इसराफ नहीं करूंगी, फालतू खर्च नहीं करूंगी, हर चीज बराबर से नोट डाउन करूंगी, करेक्ट। तो उसी तरह बहनों, दुनिया में तो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, पर हलाल और हराम की पहचान होना, है ना, ये सब चीजों का जो जहन है, इल्म है, ये सब बहुत जरूरी है बहनों। कितने लोग आके पूछते हैं कि देखो कितने लोग है ना बहनों, अल्लाह का शुक्र है हम लोग ऐसे नहीं है, मगर कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि यूरिन पियो, मतलब पेशाब में पेशाब पियो। एक आदमी था जो अपना ही पेशाब, नाउजुबिल्लाह बोलते हुए भी ये होता है, पर वो पीता था, उसको डॉक्टर्स ने कहा था। तो कितने लोगों का मेडिकल पर्पस के लिए कहते हैं कि अपना पेशाब पियो, या ऐसी दवाइयां देते हैं जिसमें बहुत शराब का इंटेक होता है बहनों। तो बहनों हमेशा याद रखना कि जो चीजें हमारे अल्लाह ने हलाल की है ना बहनों, और जो चीजों ने अल्लाह ताला ने हराम किया है, उसमें नुकसान है ही है बहनों। कितना भी डॉक्टर्स कुछ भी कहे, उसमें नुकसान है। कोई चीज उसमें हमको क्या होएगा, फायदा, मतलब लगेगा कि हाँ फायदा मंद है, डॉक्टर सब बोलेगा, मगर नहीं बहनों। अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, अगर वो कह रहा है कि नहीं, नहीं ये सब चीजों से बचो, तो हमको बचना ही बचना है। कितने डॉक्टर सर्दी खांसी के लिए ऐसी दवाइयां देते हैं जिसमें इतनी नींद आती है, और फिर बाद में पता चलता है कि इसमें अल्कोहल होता है। तो फौरन बहनों वहां पर है ना डॉक्टर्स को बोलने का, क्या बोलने का, कि मुझे ऐसी दवाई दो जिसमें ऐसा अल्कोहल ना हो। ये मैं खुद बोलती हूँ डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स माशाल्लाह फिर देते हैं बहनों, दूसरी दवाई लिख के देते हैं जिसमें शराब नहीं होती है। और अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई दवाई में, हर दवाई में होती ही है, तो याद रखना बहनों उसका जो मतलब जो उसमें रहता है ना परसेंटेज, वो बहुत ही कम होता है। अगर मजबूरी है तो समझ में आता है, मगर वो लोग हमेशा जो है ना बहुत ज्यादा अल्कोहल बेस्ड दवाइयां दे देते हैं, जो हमारे लिए नुकसान होता है बहनों। समझ में आ रहा? तो ये सब बातों का हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। जो चीज नापाक है वो नापाक ही है। भले वो यूरिन पी के मैं कितने साल जी लूंगी, मगर हमारे अल्लाह ने मना किया है तो मुझे इतना साल जीना भी नहीं है। जो नापाक है वो मेरे लिए नापाक है, और हम उस चीजों को जो दवाइयों के लाइन से भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आयत है बहनों, सबको समझ में आई, सबको क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये सब इंशाल्लाह हम ध्यान देंगे। अगर किसी अगर इंशाल्लाह देखो बहनों, बारीकियां है ना। हमारे बच्चे बोलते हैं कि अरे ये क्यों ऐसा, ये क्यों मना, ये क्या नहीं। ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे सुपर सुपर मार्केट्स और ऐसी जगहों पे काम करते हैं, है ना। तो ये सब चीजों से बचना है बहनों। शराब का लेना देना, लिखने वाला, उठाने वाला, पहुंचाने वाला, वो सब गुनहगार है बहनों। शराब बनाने वाला, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, पहुंचाने वाला, डिलीवरी बॉय, समझ में आ रहा है? यानी कि ये सब आ जाते हैं बहनों। लिखने वाला, बिल बनाने वाला, है ना। वो सिर्फ बैठा रहेगा कहाँ पे, अकाउंट्स में बैठा रहेगा, पर अगर वो भी उसमें शामिल है, सब सब आ जाते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या करेंगे, ये सब बातों से हम बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में क्या बोल रहा है बहनों? आयत नंबर 4 हो गया। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला कहते हैं कि आज के दिन हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए क्या, पाकीज़ा चीजें। अल्लाह ताला क्या कह रहा है बहनों कि आज के दिन हमारे लिए क्या हो गया, हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाक चीजें, जो मैंने ऑलरेडी बता दी। और खाना किन लोगों का, उन लोगों का जिनको किताब दी गई थी, वो हलाल है तुम्हारे लिए। और तुम्हारा खाना जो है, हाँ, तुम्हारा खाना भी क्या है, हलाल है उनके लिए। अब क्या बात हो रही है बहनों, यहाँ पे यहूद और नसरानी की बात आ रही है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, मदीने का दौर था, आसपास सब अहले ईमान जो है, हमारे सहाबा जो है जहाँ पे रह रहे थे, उनके आसपास सब कौन थे, यहूद और नसरानी है। हमारे इंडिया में तो इतने नहीं है बहनों, पर हाँ, फॉरेन कंट्रीज में क्रिश्चियंस और ज्यूज बहुत सारे हैं, है ना। तो बहनों अब क्या हो रहा है ना कि इस्लाम माशाल्लाह फैल रहा था, वो जमाने की बात बता रही हूँ अभी, कि वो जमाने में क्या हो रहा था, इस्लाम फैल रहा, इस्लाम गालिब हो रहा था। अब यहूदी नसरानी जो साथ साथ रह रहे थे, अब कहीं ना कहीं दावतें तो होती है, जैसे कि आज भी होती है। कितने हिंदूज हमको दावत देते हैं ना, शादियों की दावत देते ही है, करेक्ट। हम भी उनकी शादियों में जाते हैं, वो भी हमारे शादियों में आते हैं, है ना। तो उसी तरह वो जमाने में भी ऐसा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सहाबा को डर खौफ है कि अगर हम इनके दावतों में जाते हैं और खाना खाते हैं, तो क्या ये खाना हलाल है कि हराम है। हाँ, तो अल्लाह तबारक ताला जो है ये हमको क्या बता रहा है बहनों, कि अगर वो यहूदी या नसरानी, अगर वो पाक चीजें हमको देते हैं, पाक जानवर जो हम लोग खा सकते हैं, ऐसे ऐसे जानवर अगर वो जुबा करके हमको उसकी दावत देते हैं, तो वैसा खाना हम लोग खा सकते हैं। आजकल जो अभी मैं बार बार बता रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट्स है बहनों, जो क्रिश्चियंस की होती है, ज्यूस की होती है, ओके। ऐसी जगह पे हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, क्रिश्चियन की कॉलेजेस जाते हैं, जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, जहाँ पे खाने का बंदोबस्त कैंटीन होता है बहनों। अब वहां पर अगर वो लोग कहते हैं कि ये बकरे की, यानी कि ये जो बिरयानी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी अगर वो रखता है, और अगर वो बताता है कि ये जुबा किया हुआ है, हाँ, ये हलाल ही है, तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुरान की आयत ही है बहनों, कि अल्लाह ताला साफ कहते हैं कि खाना किसका, उन लोगों का जिनको किताब दी गई है, वो तुम्हारे लिए हलाल है, पर शर्त क्या होना चाहिए, पाक चीजें, ओके। जो भी हम जानवर खाते हैं वो, और जुबा किया हुआ, ये दो बातों का ध्यान दे बैठे हैं। और उसी तरह हमारा खाना भी उनके लिए हलाल है। कितने बार ऐसा होता है कि हम जो है वो दावत रखते हैं, ईदों की दावत रखते हैं ना, हमारे बकरी ईद में बिरयानी बनती है, तो हमको भी जहन में आता है कि हमारे घर की शादियों में, या जब हमारी ईदैन होती है, तो क्या मैं काफिरों को बुला सकती हूँ कि नहीं बुला सकती हूँ। तो वो लोग भी आके हमारा खाना खा सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैं काफिरों को बुला के, या मुशरिक को बुला के, या अहले किताब जो यहूदी नसरानी है, उन वो भी क्या कर सकते हैं, मेरा खाना खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना क्या है, पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर शर्त मैंने बता दिया बहनों,
ज़ुबा किया हुआ खाना, हाँ प्लीज ये बात याद रखें। अगर अहले किताब का अगर डाउट हो रहा है कि भाई पता नहीं, हाँ हो सकता है कि कभी कभी हम लोग को शक और शुबा बहुत होता है ना, क्योंकि वो लोग जो है क्रिश्चियंस है और दो जो भी बाहर वाले जो होते हैं वो लोग पोक बहुत खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को डर खौफ होता है ना बहनों। तो प्लीज ऐसी हालतों में, अब किसी ने मेरे को क्रिश्चियन की शादी में बुला लिया बहनों, ऐसी हुआ था हम लोग के इसमें, क्रिश्चियन की शादी में जाना पड़ा क्योंकि आस पड़ोस थे, हुकूकुल इबाद मना मतलब हुकूकुल हक रहता है ना, हमारा राइट्स होते हैं नेबर्स के। तो चले गए थे हम लोग, मगर वहां पे दो टाइप्स ऑफ खाने थे, एक नॉन वेज था एक वेज था। और वो क्रिश्चियंस बोल भी रहे थे कि नहीं हलाल वाला ही खाना है, आप लोग खाइए, पर कहीं ना कहीं दिल नहीं मान रहा था बहनों। हम लोगों ने क्या किए, वेज खाना खाया, समझ में आ रहा है। तो जहां पर भी आपको शक व शुबा रहेगा बहनों, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिस्मिल्लाह बोल के खाए, क्योंकि वो कह रहा है ना सामने वाला हलाल है, तो वो कह रहा है वो हलाल है और पाक जानवर है, तो खा सकते हैं बहनों। अगर जहां शक और शुबा हो रहा है तो वहां पे हम वेज प्रिफर करें, ओके इंशाल्लाह। और क्या जायज है और क्या हलाल है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं बहनों, कि ऐसी औरतें, ओके जो अभी यहाँ पे शादी के बारे में भी आ रहा है बहनों, अब तो खाना हलाल हो गया। और पाक दामन औरतें मोमिनों में से, अब मोमिनों में से जो अहले किताब की अगर कोई औरत है जो पाक दामन है, ओके चेस्ट वुमन है, और ईमान भी ला लिए बहनों, तो ऐसी औरतें जो है उनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, पाक दामन औरतें कहाँ से, जो बिलीविंग वुमेन्स में से हो, ओके पाक दामन औरतें किस कौन कौन हलाल है, पाक दामन औरतें ईमान वालों में से, और पाक दामन औरतें किन लोगों में से, जिनको दी गई है किताब तुमसे पहले, ओके इनके साथ भी कब निकाह जायज है, जब तुम उन्हें अता करो उनका मेहर, ओके उनका मेहर जब तुम उनको अता कर रहे हो, तो ये भी क्या है, जायज है। अब देखो बहनों, वो जमाने की बात थी कि जब है ना इस्लाम फैल रहा था बहनों, इस्लाम जो था वो गलबा पा चुका था। अब यहाँ पे जो है ना मुफस्सरीन इसके बारे में उलेमा जो है इसके बारे में अलग अलग ताबीर बोलते हैं बहनों। एक तो वो जमाने की बात थी कि जब जो क्रिश्चियंस थे और यहूदी औरतें जो थी वो कैसी थी, ईमान वाली थी, वो शिर्क नहीं करती थी, ओके वो उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते थे, वो लोग अल्लाह का नबी ही मानते थे। और वो लोग कैसे थे, तौहीद पर थे, शिर्क और बिदअत नहीं करते थे, और वो पाक दामन औरतें थे। तो ऐसों को जो था सहाबा शादी करते थे, सहाबा निकाह करते थे, मेहर देख के निकाह करते थे, क्यों, ताकि इस्लाम फैले। समझ में आ रहा है। मगर आज के जमाने में बहनों, आज के जमाने में ये कितने उलमा कहते हैं जायज नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे यहूदी और ऐसे नसरानी नहीं मिलते हैं बहनों, जो क्या हो, शिर्क और बिदत से पाक हो। हम सब जानते हैं ना बहनों, वो लोग एक अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग अल्लाह के साथ शिर्क ठहराते हैं। तो ऐसे क्रिश्चियंस को और ऐसे यहूदी औरतों को शादी ना करें आज के जमाने में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो बहन है ये शिर्क से पाक है और ये अल्लाह को मानती है और पाक दामन है, तो आज भी निकाह हो सकता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्यों ये मना है पता है बहनों, क्योंकि इससे नस्ल चलेगी। अगर ये औरत सही सही अकीदे की नहीं रहेगी तो ये बच्चों को भी गलत अकीदा बताएगी, और हमारी नस्ल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसा हो चुका है बहनों, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे मुसलमान फैमिलीज थे बहनों, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने पाक इतने अच्छे फैमिलीज बहनों, पूरे पूरे मुसलमान, पर एक बेटे ने क्या किया, एक क्रिश्चियन लड़की से शादी किया, उसको मुसलमान बना के ही शादी किया, मगर वो लड़की ने क्या करी, जो बच्चे थे बहनों उनको क्रिश्चियंस बना दी। आदमी था, आदमी का जोर नहीं चला बहनों, समझ में आया। और फिर वो आदमी का इंतकाल हो गया, और क्या हुआ, उस औरत ने उस बच्चों को क्रिश्चियन बना दी, और वहां से जितनी भी नस्ल चली ना बहनों आगे, वो पूरे क्रिश्चियन हो गए। वो यूके का प्राइम मिनिस्टर था बहनों, जब उसका पूरा वो तो ना वो ट्री देखते हैं, फैमिली ट्री होता है ना, उसको जब न्यूज़पेपर में डाला गया बहनों, तो उसके दादा परदादा सब मुसलमान थे,
ایک اس کے باپ یا پردادا نے غلطی کام کیا, کسی کرسچن سے شادی کر لیا بہنوں, اور وہاں سے پوری نسل کیا ہو گئی, کرسچن ہو گئی بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ اس کے لیے کیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا ہے بہنوں. عورت تو کر ہی نہیں سکتی, عورت نہ وہ زمانے میں کی نہ آج کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک عورت جو ہے, جب اس کا شوہر جو ہے اس کے اوپر حاکم ہو جائے گا. اوکے, اگر ایک عورت ایک کرسچن یا جیو آدمی سے کرتی ہے تو بٹ آف کورس وہ کیا ہوئے گی, وہ جیوز یا کرسچن جو ہے وہ اسی کے ساتھ اگر شادی کرے گی تو وہ غلبہ پا لے گا, اور بچے جو ہے بٹ آف کورس اسلام پر نہیں رہیں گے, بلکہ وہ کیا ہو جائیں گے, وہ بھی شرک کاموں میں پڑ جائیں گے. تو عورت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. ہاں, پر صحابہ وہ زمانے میں کرتے تھے بہنوں. کیوں؟ اسلام پھیلانے کے لیے, تاکہ ایک پاک دامن عورت کو جو توحید پر اگر ہے تو اس کو اسلام پر لاتے تھے الحمدللہ, اور اس سے جو بچے ہوتے تھے وہ اسلام پھیلانے کی نیت ہوتی تھی. اسلام نسل چلے, در نسل کیا ہوتے تھے, اسلام پھیلتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ پر آج یہ کیا ہے, امپاسبل ہے بہنوں. یہ آیت آج کوئی لڑکا یا لڑکی لے کر یہ نہ کہے کہ دیکھو قرآن میں تو ہے اہل کتاب سے جائز ہے, نہیں, کیونکہ آج ایسے نہیں ہے بہنوں. آج جتنے بھی جیوز اینڈ کرسچنز ہیں بہنوں, وہ سب کیا کر رہے ہیں, شرک کام کر رہے ہیں. اوکے, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تم اس کو عطا کرو اس کا مہر, اور تم کس لیے کر رہے ہو یہ سب کام, کس لیے کر رہے ہو, کیونکہ تم جو ہے وہ کیا چاہتے ہو, پاک دامنی چاہتے ہو. یعنی کہ تم چھپ کر جو ہے یہ رشتے نبھا نہیں رہے ہو, تم جو ہے وہ زنا نہیں کر رہے ہو, بدکاری نہیں کر رہے ہو, یا تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہو, بلکہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو, نکاح میں لانے کے لیے کر رہے ہو. مہر جو ہے وہ عطا کرو تاکہ اس کو کیا کرو, نکاح میں لے کے آ جاؤ, زنا نہ کرے, یعنی بدکاری کرنے والے نہ ہو, اور نہ ہی تم ان کو جو ہے وہ کیا کرو, خفیہ جو ہے وہ کیا کرو, یعنی کہ چھپ چھپ کے یا خفیہ جو ہے وہ رشتے نہ رکھو. یعنی کہ آج بھی بہنوں ایسے مسلمان ہیں, ایسے انڈینز اینڈ پاکستانیز ہیں بہنوں, مسلمان لڑکے بہنوں جو لندن چلے جاتے ہیں, یو ایس چلے جاتے ہیں, کینیڈا آسٹریلیا جاتے ہیں بہنوں, پڑھائی کے معاملے میں یا جاب کے معاملے میں, اور جا کے وہاں کی عورتیں جو گرین کارڈ ہولڈرز ہوتی ہے یا وہاں کی پی آر ہوتی ہے, پرماننٹ ریسیڈنسی والے جو ہوتے ہیں, ان سے نکاح کرتے ہیں بہنوں. کیوں نکاح کرتے پتا ہے بہنوں, ان کا دھوگلا پن, منافقت دیکھو, تاکہ ان کو وہاں پہ کیا مل جائے, وہاں کا پرماننٹ ویزا مل جائے. ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کا کیا ہوگا, ان کو خود کا فائدہ دکھتا ہے بہنوں. یہ ہو رہا ہے بہنوں. وہ لوگ کیوں نکاح کرتے ہیں, وہ دیتے رہیں گے مہر, پر ان لوگ کیا کس نیت سے کر رہے ہیں بہنوں, ہاں, یہ کیوں کس نیت سے کر رہے ہیں, تاکہ دنیا کا فائدہ پہنچے, ہے نا. تو یہ سب کیا ہے بہنوں, منع ہے. آج بھی اتنے لڑکے لڑکیاں مسلمان جو ہے وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے بہنوں, یعنی کہ بنا نکاح کیے ہوئے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں, زنا کر رہے بہنوں, خفیہ رشتے رکھتے ہیں, سیکریٹ کمپینینز رکھتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ سب لورز رہنا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہنا, یہ اسلام میں کیا ہے, منع ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جو کوئی انکار کرے ایمان کے ساتھ, یعنی کہ ایسا انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے, اللہ کی یہ سب باتیں نہیں مان رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے بہنوں, اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے. دنیا کو اس نے کیا کیا بہنوں, سودا کر دیا. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے آخرت کا سودا کر لیا, اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا بہنوں, ہے نا. اس نے بیسیکلی اس نے کیا کیا, کفر کو خرید لیا, کس کے بدلے, ایمان کے بدلے. ہاں, ایسا انسان جو انکار کرتا ہے ایمان کے ساتھ, تو تحقیق ضائع ہو گیا اس کے اعمال, اور وہ کیسا رہے گا آخرت میں, خسارہ پانے والوں میں سے رہے گا. اس کا سب ضائع ہو گیا بہنوں, اس کے تمام اعمال کیا ہوئے, ضائع ہو گئے.
हुए कि नहीं हुए बहनों? अगर ऐसा इंसान जाके फॉरेन कंट्रीज में इसलिए रह रहा है कि परमानेंट वीजा मिल जाए, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसको ईमान की कोई अहमियत ही नहीं है, हाँ, कोई कदर ही नहीं है, तो उसके बच्चों का क्या होगा बहनों? सोच के देखो, उसका ईमान तो गया ही गया, और उसके तमाम अमाल क्या हो गए? वेस्ट हो गए बहनों, पूरा के पूरे। उसने बचपन से नमाजें पढ़ा होगा, रमजान के रोजे रखा होगा, शायद हज उम्रा किया होगा, जक़ात दिया होगा, सब क्या हो गया? जाया हो गया। और कल वो आखिरत में क्या होगा? नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को भी हम बताएं बहनों, ये यारी दोस्ती है ना, जाते कॉलेज में यारी दोस्ती रखते और कहते कि क्या हो गया, हाँ, क्या हो गया? बहनों, इस्लाम जो है ना, ये सब चीजों से मना करता है। क्या कहता है? अल्लाह जो है ना, वो ये नहीं कहता है कि फहश मत करो, अल्लाह कहता है फहश के करीब भी मत जाओ। समझ में आ रहा है? डू नॉट इवन गो क्लोज टू लुविडनेस, हम उसके करीब भी ना जाए बहन। अल्लाह को सब पता है ना, हमारा खालिक है वो, उसको पता है कि पहले हम लोग क्या करते रहे बहनों। पहली चीज जो मिलती है वो नजर मिलती है बहनों, याद रखना। पहले एक दूसरे को देखते हैं, एक झलक माफ है, और मतलब पता है अगर आदमी है तो देखो भी मत बहनों। चलो भाई भूल से देख लिया तो एक झलक देखा, हटा दो नजर। उसके बाद बार बार हम लोग देखते हैं, और हम लोग बोलते हैं वो मेरे को देख रहा है, वो मेरे को देख रहा है। अरे तुझे कैसा मालूम वो तेरे को देख रहा है? पहले तू देख रही तो पता चल रहा है ना। तो एक नजर जो है ना बहनों, वो भी ना डाले अगर कदमों से पता चल रहा है कि अगर सामने वाला मर्द है। क्योंकि बहनों हमको क्या है कि हम जो है ना वो हम्म कि हम जो है ना अपनी नजरों को झुका के चले, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, और हम किसी को देखे नहीं, अपनी नजरों की हिफाजत करें बहनों। और जितना हो सके ना बहनों, जितना देखेंगे, सबसे पहला तीर शैतान का ये नजर होता है बहनों। नजरों से नजरें मिलती है, और फिर क्या होता है, इंसान एक दूसरे को पसंद करने लग जाता है, फिर उसको हर चीज पसंद आती है, फिर वो फोनों में बात करने लग जाते हैं, आवाज पसंद आ जाती है, और शैतान बोलता है फ्रेंड्स है कुछ नहीं। मगर आहिस्ता 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 दिल पर असर होता है बहनों। और फिर एक वक्त आता है कि इंसान जो है ना, वो शैतान जो है, वो हमारे रगों में ना खून के जैसे फिर रहा है बहनों। समझ में आ रहा है? जैसे कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, वैसे ही शैतान मेरे रगों में है। वो कैसा बहकाएगा कि वो दीन के रास्ते से आएगा, कि दीन की बातें तो बात कर रहे हैं, अच्छी बातें तो बात कर रहे हैं, स्कूल की बातें बात कर रहे हैं, पर वो कैसा बहकाएगा ना बहनों, हमको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सहेलियों की दोस्ती रखो, सहेलियों से पूछो, लड़कों से जितना हो सके हम दूर रहे बहनों। हमारा मुंह बोला भाई, मेरा हमारा कजन नहीं, सब दूर, सलाम दुआ दूर तक रहे बहनों। ज्यादा बातचीत ना करे, ज्यादा फोनों में ना रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होएगा बहनों, कब ये शैतान जीनाकारी पर हमको ला लेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आलिम जो है वो बहक गए, गुमराह हो गए बहनों। समझ में आ रहा है? हम कौन से खेत की मूली है, हमको कैसे वो बहकाएगा, हमको ही नहीं पता चलेगा। तो जितना हो सके हम ये सब चीजों से क्या रहे, दूर रहे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीजों से हम क्या रहे, दूर रहे। बहुत बड़ा खसारा है बहनों। दुनिया में इंसान जलील हो जाता है बहनों, उसके चेहरे का नूर हट जाता है, उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहता है। दोनों जहां में ऐसा बंदा जिल्लत और नाकाम रहता है। तो ये सब बातों से हम क्या करेंगे, बहुत बचेंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बहनों ये आयत समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, हमारे बच्चों की, हमारे नस्लों की हिफाजत करे, है ना। आमीन आमीन आमीन। हमारे बच्चों को बहनों बहुत समझाए, जहां भी बहनों देखो ना, कहते हैं ना कि माल फितना है, और क्या है, माल फितना है। और ये जो ऑपोजिट सेक्स के जो होते हैं, देखिए अगर मैं औरत हूँ तो मर्द, मर्द से मैं दूर रहूं, और अगर कोई मर्द है तो वो औरत से दूर रहे। तीन चीजों से दूर रहना है बहनों, माल से, शोहरत से, और ऑपोजिट जेंडर से हम लोग दूर रहे बहनों। हया हमारे अंदर रहे, है ना। इंसान इसलिए बोलता है बहनों कि सबसे वाला बोलने वाला मोहताज रहता है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आयत आ रही है बहनों, ये क्या है,
اللہ ताला हमको क्या कहने कह रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए। अभी नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ जहाँ पे नमाज के बारे में बताया जा रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए, फिर ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहा जा रहा है कि जब तुम खड़े हो नमाज के लिए तो क्या करो, हम जो है वो क्या करे, जब भी हम नमाज के लिए खड़े रहे तो हमको क्या करना है, वुजू करना है। और वुजू करने में क्या करना है, पहले हमारे चेहरे को धोना है। देखो बहनों, वुजू करना जो है वो फर्ज है ना। वुजू करना फर्ज है हर नमाज के लिए, भले वो फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफल नमाज हो, वुजू शर्त है, करेक्ट। अभी इसी तरह बहनों हदीसों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए अलग अलग वजू भी करते थे, और हर नमाज के लिए यानी पूरे नमाज को जो है वो एक वजू के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 3-4 नमाजें। ओके, जैसे कि फजर तो चलो हो गया, जोहर असर हम एक वजू से पढ़ सकते हैं, या असर मगरिब इशा अभी छोटे दिन है ना, तो हम लोग एक वजू से पढ़ सकते हैं। तो दो जो ये हमारे, ये भी क्या है बहनों, सुन्नत से साबित है बहनों, समझ में आ रहा है। हम लोग एक वजू से 3-4 नमाज भी पढ़ सकते हैं, और हर नमाज के लिए नया वजू भी कर सकते हैं। अफजल तो क्या है, नया वजू करना। मगर कोई बेचारा बूढ़ा है या बीमार है या बार बार नहीं कर सकता, उसको लगता है कि मेरे को सर्दी बढ़ जाएगी, तो ऐसा बंदा जो है वो क्या कर सकता है, 2-3 नमाजें एक वजू के साथ पढ़ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजू के 4 फर्ज है बहनों। पहला क्या है, एक ही बार जो है पूरे चेहरे को धोना, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है बहनों, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, चेहरे को धोना, अपने दोनों हाथों को धोना, कहाँ तक, कोहनियों समेत, यानी एल्बोज जो है, हाँ एल्बोज के तक हमको क्या करना है, दोनों हाथों को धोना है। यहाँ पे ध्यान दे बहनों, कलाई नहीं लिखा हुआ है, ओके, रिस्ट नहीं लिखा हुआ है, एल्बोज लिखा हुआ है। कलाई, हमारा कलाई जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, बगड़ियां पहनते हैं, रिस्ट बोलते हैं, वहां तक नहीं बहनों, कोहनियों समेत, एल्बो समेत हमको क्या करना है, हाथ धोना है। फिर क्या करना है, सर का मसा करना है, 1/4 सर का मसा करना है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दोनों पैरों को टखने समेत धोना है। ये 4 फर्ज है बहनों, एक बार भी कर लेंगे तो वजू हो जाएगा। अगर हम कहीं होते हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, या पे हम बहुत बीमार है, या तो ऐसा है कि जो है हम लोग सफर में है, हाँ, ऐसा कभी होता है ना बहनों कि वक्त की कमी है, 5 मिनट है फजर का टाइम खत्म होने, ऐसा होता है बहनों कि इतना लेट उठते हैं कि 5 मिनट्स रहता है, तो फौरन भागे, जल्दी से ये 4 फर्ज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे 2 फर्ज पहले पढ़ के फिर 2 सुन्नत पढ़ ले, है ना, ताकि हमारी फर्ज नमाज जो है वो मिस ना हो, ओके। और हम वजू के बाद क्या करते हैं बहनों, दूसरा कलमा भी पढ़ते हैं, हाँ, ताकि जो है 8 दरवाजे जन्नत के उस बंदे के लिए खुल जाते हैं जो क्या कहता है, सेकंड कलमा पढ़ता है ना, गुनाह भी, सगीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजू की बात की, दुआ भी है बहनों, सेकंड कलमा भी है, वो भी हम पढ़े। और अगर तुम किस हालत में हो, जो है नापाक हालत में हो, यानी जनाबत की हालत में हो, तो क्या करो, गुस्ल कर लो, यानी खूब अपने आप को क्या करो, पाक जो है अपने आप को धो लो, है ना, खूब पाक हो जाओ, यानी कि गुस्ल करो। अगर कोई इंसान क्या है, नापाक हालत में है, जुनबी, यानी कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के बाद जो नापाकी होती है ना, उसको कहते हैं हालत जनाबत में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। और अगर वो मरीज है या सफर में है, या वो कोई एक जो है वो कहाँ से आ रहा है, कज़ाए हाजत से आ रहा है, तो उसको क्या कर, और या तो वो किसी औरत को उसने छू लिया है, ओके, तो पहले तो बहनों वजू के फर्ज बताए गए, ओके, फिर कहा गया कि तुमको गुस्ल भी करना है। अब ऐसा बंदा जो क्या है बहनों, बीमार भी है, सफर में भी है, हाँ, अब ऐसा बंदा जो है बहनों, उसको अगर समझ जाओ, एक तो गुस्ल भी है, या तो वो किसी औरत को गंदी नीयत से छू लिया, या तो वो बाथरूम से बाहर आ रहा है, तो उसको वजू भी तो करना पड़ेगा। मगर अभी जो है उसको पानी नहीं मिल रहा है, और फिर नहीं वो पाए पानी को, हाँ, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं है। अब देखो बहनों, फ्लैट्स में भी क्या होता है पता है, कितने बार पानी ही नहीं आता है, पानी नहीं चढ़ता है ना, नल है, पानी नहीं है घर में,
تو ऐसा बंदा क्या करेगा? ऐसा बंदा बहुत बीमार है बहनों, शदीद बीमार है, डॉक्टर ने बोला पानी में हाथ नहीं डालना, तो ऐसा बंदा क्या करेगा? तो ऐसे टाइम पे जो इंसान सफर में है, पानी नहीं है, ओके, पानी नहीं है, सफर में है, सख्त बीमार है, डॉक्टर ने मना किया है पानी में हाथ नहीं डालना, तो ऐसा बंदा फिर क्या कर सकता है? तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम किससे करे? पाक मिट्टी से करे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और तयम्मुम के 3 फर्ज है बहनों, वुजू के 4 थे और तयम्मुम के 3 है। पहले क्या है? नियत करना। अच्छा, तयम्मुम में दोनों काम हो जाता है बहनों, वुजू भी हो जाता है और गुस्ल भी हो जाता है। कोई इंसान, कोई आदमी ट्रेन में जा रहा था, अब ट्रेन में उसको एहतलाम हो गया, यानी नाइट फॉल हो गया, ओके, उसको जो है वो नापाक हो गया, अब ट्रेन में है बहनों, अब वो नापाक हो गया ट्रेन में, उसके हाथ में नहीं है, नाइट फॉल हो गया उसको, अब वो क्या करेगा ऐसा बंदा? कहाँ गुस्ल करेगा ऐसा बंदा? तो वो क्या कर सकता है? ट्रेन में, क्योंकि पानी नहीं है, पानी तो है, वजू कर सकता है, पर वो कहीं जाके नहा तो नहीं सकता, अब नमाज का टाइम हो रहा है बहनों, तो ऐसा बंदा फिर क्या करे? तयम्मुम करके वो क्या करेगा? गुस्ल कर लेगा। फिर जब वो घर पहुंच जाता है, हाँ सफर में है ना वो, अब जब वो घर पहुंच जाता है तो वो जाके बराबर से गुस्ल कर लेगा। और कैसे करेगा बहनों? अगर वो ट्रेन में है तो पाक मिट्टी पहले लेगा, नियत करेगा, फिर अपने चेहरे का मसाह करेगा एक बार, और फिर दोनों हाथों को वो क्या करेगा? वो मट्टी से जो है वो जो है पूरे जगह पे वो मट्टी को, पहले मट्टी पर हाथ मारना है बहनों, ओके, झटक देना है मट्टी को, पहले चेहरे पर अच्छी तरीके से उसको पूरा चेहरा करेंगे, अपने आँख के नीचे और हर जगह बहनों अच्छे से, और फिर क्या करेंगे? लेफ्ट दोनों हाथों को फिर मट्टी पे मार के लेफ्ट हैंड को पहले राइट हैंड पहले पूरे अच्छे से पोंछेंगे, फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को, मतलब सीधे हाथ को पहले करना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इरादा चाहता है अल्लाह कि वो डाले तुम पे कोई सख्ती, कोई तंगी, कोई डिस्कम्फर्ट, ये अल्लाह ताला का एहसान और करम है ना बहनों, ये सब चीजें पहले उम्मतों को नहीं मिली बहनों, ये हमको मिल रही है, तो अल्लाह का एहसान और करम है ना। अल्लाह ताला जो है हम पर कोई तंगी नहीं डाल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है कि वो तुम्हें हमें पाक करे, है ना। और वो क्या चाहता है कि वो हम पर क्या करे? पूरा करे, मुकम्मल करे उसकी नेमतों को तुम पर, ताकि तुम क्या करो? शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला का कितना एहसान और करम है ना बहनों, कितनी आसानी दे दी ना अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह। कि अगर हम बीमार है, अगर हम पानी में हाथ नहीं डाल सकते, डॉक्टर ने मना किया है, देखो बहनों कितनी औरतें ऐसी होती है जो बहुत तक बीमार होती है, कितने आईसीयू में होते हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ रहेगा, अब उसको वहां पे कैसे पाक कर, अपने आप को कैसे वो गुस्ल कर सकती है? वो हैज से पाक हुई रहेगी, पर डॉक्टर उसको नहीं भेजेगा कि जाके गुस्ल कर, है ना। ऐसे है पेशेंट्स बहनों, आईवी में है वो लोग बेचारे, कोई वेंटिलेटर में है बेचारे, है ना, कोई है ऐसे मरीज, तो क्या करेंगे? कहाँ गुस्ल करेंगे? अब 7 डेज हो गया पीरियड का, पाक होना है उसको, उसको नमाज शुरू करना है, तो वो बेचारी ऐसे भी कर सकती है। कितनी आसानी दे दी अल्लाह ने, सफर में है तो भी, बीमार है तो भी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी बहनों इंशा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये दोनों चीजों में बहनों दोनों हो रहा है, वुजू भी हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा। अल्लाह का कितना एहसान और करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का कितना भी शुक्र करे उतना कम है ना बहनों, कितनी आसानी दे दी अल्लाह ने, उसने अपनी नेमतों को पूरा कर दिया हम पर, ताकि हम क्या करें? शुक्र अदा करें। और याद करो अल्लाह की नेमतें तुम पर, है ना। इंसान जो है वो अल्लाह की ये सब नेमतों को याद करते रहे बहनों, जब एक इंसान अल्लाह के एहसानात को याद करता है तो वो शुक्र अदा करता है, वो क्या करता है? उसकी कदर करता है। अल्लाह को हम जितना शुक्र करेंगे, जितना कदर करेंगे बहनों, तो अल्लाह ताला मजीद उसमें इजाफा देता है ना बहनों। जब हमारा बच्चा, हम कोई भी चीज उसको लाके देते, हमारा बच्चा जब शुक्र करता है, वो चीज को संभालता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको और अच्छा देंगे, पहले साइकिल देते,
साइकिल दे के देखते हैं कि हाँ बच्चा कैसा है, अच्छा देख रहा है ना, बराबर साइकिल को रखा है, समझ में आ जाता है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, एक वक्त आता है कि बाइक देते हैं, फिर बाइक बराबर रखता है, बराबर चलाता है, फिर एक वक्त आएगा कि कार देंगे उसको, है ना। उसी तरह बहनों अल्लाह ताला भी क्या देखता है कि उसकी नेमत का हम शुक्र अदा करते हैं कि नहीं, कदर करते हैं कि नहीं, और जो नहीं करता है उसको अल्लाह ताला अता भी नहीं करता है। और पता है बहनों, नेमत का एहसास कब होता है, जब वो नेमत नहीं रहती है ना। नेमत जब छीन ली जाती है तो कदर होती है। जब तक माँ बाप रहते हैं हम कदर ही नहीं करते, माँ बाप को उफ टुफ सब करते है ना, चीखते चिल्लाते। जब माँ बाप चले जाते हैं तो इतना रोते, इतना रोते। शादी के बाद असल माँ बाप की कीमत पता चलती है कि अल्लाह माँ बाप कितने अच्छे थे, कुछ बोलते भी थे तो हमारे अच्छे के लिए बोलते थे, है ना। तो इसी तरह बहनों अल्लाह की नेमत को याद करें। सबसे बड़ी दौलत उसने ईमान की नेमत दी हमको, है ना। उसने हमको जो है मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, कुरान से नवाजा, कुरान को समझने वाला बनाया, इतना बेहतरीन इंसान बनाया, आजाद दिया हमको। अगर वो चींटी बना लेता तो हम क्या करते बहनों। जो वेल मच्छी है ना बहनों, वेल मच्छी, जो आप लोग को पता ही रहेगा, समुंदर की सब मछलियां पाक है बहनों। हाँ, यहाँ पे एक इजाफा कर देती हूँ कि सब मछलियां पाक है, मगर कोई जो है जैसे कि पानी में वो क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ भी रहता है ना, तो वो हलाल नहीं है। सांप भी रहते हैं, वो हलाल नहीं है। टॉर्टोइस, कछुआ कहते हैं, राइट, वो हलाल नहीं है। जो जानवर पानी में रह के जमीन पर भी रहता है, ओके, जमीन पर भी रहता है बहनों, जैसे क्रोकोडाइल पानी में रहता है मगर जब बाहर आता है जमीन पर भी रहता है, उस तरह टॉर्टोइस है, कछुआ है, या सांप होते हैं इतने सारे, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है। मगर जो मछलियां पानी में ही रहते हैं और पानी से बाहर निकाल कर वो मर जाते हैं, जरा देर बाद भी मरते हैं मगर मर जाते हैं, जैसे खेकड़ा फौरन नहीं मरता बहनों, जरा देर के बाद मरता है मगर मर जाता है वो, तो वो भी क्या है, वो खा सकते हैं हम लोग। झींगा भी खा सकते हैं क्योंकि झींगा पानी से बाहर आने के बाद मर जाता है, करेक्ट। तो उसी तरह बहनों एक वेल मच्छी है बहनों, वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसके बारे में आता है कि अफ्रीका के 13 ओके, 13 अगर बड़े बड़े अफ्रीका के एलिफेंट को अगर मैं जमा करूं, अफ्रीका के एलिफेंट सबसे बड़े होते हैं बहनों, तो अगर मैं 13 हत्तियों को अगर जमा करूं बहनों, तो एक वेल मच्छी होती है। और ऐसी वेल मच्छी समुंदर में बहनों इतने सारे हैं, इतने सारे हैं बहनों कि हम गिन भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह की नेमतें देखो बहनों। और एक एक वेल मच्छी जो है वो एक टाइम पे 500 किलो खाती है बहनों, 500 किलो। हम लोग की शादियों में भी हम लोग रखते हैं खाना, है ना, कितने किलो रखते हैं, कोई 100 किलो, कोई 200 किलो का खाना रखता है, और हम लोग इतनी तारीफें करते हैं कि भाई क्या खाना रखा, हजारों लोग खाना खा के गए। वो एक शादी होती है बहनों जिसमें उसका सब लुट जाता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ऐसे इतने सारे वेल मच्छियों को पाल रहा है पानी में, जिसको अल्लाह ताला जो है वो एक एक टाइम पे 500 किलो एक एक मछली को खिला रहा है बहनों। सोचो बहनों, अल्लाह की नेमतों को हम याद रखें, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करे, कदर करे, है ना। और जितना हम याद करेंगे, जितना हम शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला उन नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। और अगर मैंने उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करी, कदर नहीं की अल्लाह कि मुझे कुरान क्लास में लाके बिठा रहा है, कुरान से नवाज रहा है, इसकी अगर मैंने कदरदानी नहीं की, तो अल्लाह ताला इस नेमत को क्या करेगा, छीन लेगा। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। और अल्लाह ताला जो है वो क्या याद करने के लिए कहा जा रहा है, उसके कवेनेंट को, उसके वादे को, वो जो उसने जो बांधा है तुम्हें साथ उसके। अल्लाह ने क्या किया है, अपने इस कवेनेंट के साथ, इस वादे के साथ हमको क्या किया है, बांधे रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन सा वादा है बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, कि या अल्लाह तू, क्या बोलते हैं हम लोग कि या अल्लाह तू ही हमारा रब है ना, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम सब ने कहा बला, हाँ, क्यों नहीं अल्लाह, तू हमारा रब है ना। पर हम भूल गए अल्लाह के उस वादे को जो हमने आलम
आलम अरवा में किए थे। हमने कलमा पढ़ा, होश में ही कलमा पढ़ रहे हैं, पर आज बेहोश हो चुके हैं बहनों। हम अल्लाह के उस कलमे को भी पूरा नहीं कर रहे। अल्लाह को कहते तो है कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मगर अल्लाह, एक अल्लाह को हम नहीं मानते बहनों। ये पूरा कुरान जो है ना, ये बार बार कहता है कि अल्लाह को मानो, ईमान लाओ, ईमान लाओ। तो हम तो कहते हैं कि हाँ हम ईमान लाए, पर अल्लाह ताला क्या चाहता है पता है? एक अल्लाह पर ईमान लाओ, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, जो आज हम नहीं करते बहनों। हम गैरुल्लाह के पास जाते हैं, हम गैरुल्लाह की मदद करते हैं। आज ही मुझे एक बहन कह रही थी, एक रिश्ते की बात किसी की चल रही थी बहनों, तो एक लड़की बोल रही है जो कुंवारी है, कि वो रिश्ते के लिए जब बात हो रही थी बहनों, वो कहती है कि मैं हर जुमेरात जो है मैं दिया जलाती हूँ, मैं कोई चिराग चिराग जलाती हूँ, एक फला बाबा, एक फला पीर का, पता नहीं किसका वो चिराग या दिया जलाती है, और वो चाहती है कि हर जुमेरात को वो हो, और वो उसके वसीले से दुआ मांगती है। नाउज बिल्ला। यानी आज भी अकीदे दुरुस्त नहीं है बहनों, आज भी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा के मांगते हैं बहन। एक अल्लाह के हो जाए, एक अल्लाह से मांगे, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। हम तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बंदगी नहीं कर सकते, उनकी इबादत भी नहीं करते, हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं बहनों। हम नबी से दुआ नहीं मांगते, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला क्या कहता है कि मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। समझ में आ रहा है बहनों? ये वो कवेनेंट है, ये जो वादा है जिसके साथ हम लोग अल्लाह के साथ बाउंड हो चुके हैं, अल्लाह के साथ हम बांध चुके हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तुमने कहा समियना व ताना, हमने सुना और हमने इताअत की, और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला जो है तुम्हारे सीनों के भेदों को भी जानता है, वो सब जानता है, हर राज को जानता है, हर नीयत को जानता है, हर इरादे को जानता है। बार बार तकवे के बारे में आ रहा है, बार बार डरने के बारे में आ रहा है। जितना हम डरेंगे बहनों, अगर समझ जाओ बहनों, मैं अपने आँख के बारे में बात कर रही हूँ, मैं अल्लाह के डर खौफ से मेरे आंखों को गुनाह से बचाती हूँ, मेरे आंखों को बुराई से बचाती हूँ, मेरे आंखों को गंदे चीजें नाजायज चीजें देखने से बचाती हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे उस आँख की नेमत को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। मेरे आंखों की नेमत को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। हर चीज में तकवा रखे, हर नेमत जो अल्लाह ने दी है उसके साथ तकवा रहेगा, तो अल्लाह ताला उस चीज की हिफाजत भी करेंगे, और इस चीज को क्या करेंगे? बढ़ाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और लास्ट आयत पर आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाओ, ईमान लाए हो, खड़े हो जाओ तुम किसके लिए? अल्लाह के लिए गवाह। किसके साथ? इंसाफ के साथ। यानी अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है बहनों? कायम हो, यानी स्टेटफास्ट हो जाओ, यानी कि खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए गवाह देने वाले, इंसाफ के साथ, यानी सच बोलने वाले बने बहनों, हक बात बोलने वाले बने। जो दावत का काम है, जो ये अल्लाह का जो दीन का काम है, ये हक काम है, ये सच बोलने वाले बने, जो कि बहुत मुश्किल है बहनों। इंसाफ करना कितना मुश्किल है आज, करेक्ट। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ईमान वालों से कह रहे हैं कि कैसे खड़े हो जाओ? इंसाफ के साथ खड़े हो जाओ, अदल का मामला करो, हमेशा इंसाफ के साथ काम करो, सच बोलो, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, मतलब सच का साथ दो, लोगों के साथ जो है कैसे मामला करे? सच बोले, तो अल्लाह ताला जो है वो क्या देगा? इज्जत देगा, शोहरत देगा, रुतबा देगा बहनों। अगर हक बात कहेंगे तो हमेशा जो है ना इज्जत में रहेंगे। जिल्लत देता है झूठ बोलना, जिल्लत देता है बहनों। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं उसके बाद? और नहीं उभारे कोई दुश्मनी किसी कौम की कि तुम क्या हो जाओ? तुम ना इंसाफी कर लो। यानी ऐसा ना हो कि किसी की नफरत और किसी की दुश्मनी इतनी हो जाए कि तुम क्या ना करो? इंसाफ का मामला ना कर सको। तो बहनों क्या करना चाहिए? नफरतों को और दुश्मनियों को अलग हटा के रखे। जब इंसाफ का मामला हो, जब सच बात बोलने की बात आए, तो हम वहां पर क्या करेंगे बहनों? दुश्मनी और नफरत को हटा कर रख देंगे, है ना। डेली लाइफ में भी बहनों होता
होता है, जेठानी से नफरत करती रहूंगी, नड़न से दुश्मनी रखी रहूंगी, बच्चा आके कुछ बोलेगा तो मैं बोलूंगी नहीं मेरा बच्चा ही सही, ये लोग ही गलत। क्यों? क्योंकि दुश्मनी और नफरत है ना उनके साथ। तो वो नहीं देखना है बहनों, हमको क्या देखना है, कौन सही है कौन गलत है। क्या करना है बहनों, अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है अदल का मामला करो, डील जस्टली, है ना, वो ज्यादा करीब है तकवे के, सच बोलना है ना, और जस्टिस करना है, इंसाफ का मामला करना है, ये ज्यादा करीब है तकवे के। और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला खूब बाखबर है जो कुछ भी तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला क्या है, वेल अवेयर है, वो सब कुछ जानता है, वो बाखबर है जो कुछ भी हम क्या करते हैं, अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुश्मनी और नफरत जो है उसको हम हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारी आयत थी बहनों, दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह इसमें जितने भी अच्छे बातें थी या अल्लाह ये तेरे तरफ से थी। या अल्लाह उन सब अच्छी बातों में हमको या अल्लाह चलने वाला बना, अमल करने वाला बना, बाअमल बना। और जितने भी गलती कोताही थी या अल्लाह ये मेरी तरफ से थी। या अल्लाह मैं तुझसे और या अल्लाह इन बहनों से माफी चाहती हूँ। या अल्लाह दरगुजर का मामला कर, या अल्लाह माफ कर दे। या अल्लाह ये पढ़ने को पढ़ाने को कबूल कर ले। या अल्लाह हम सबको इस्तकामत के साथ बाअमल बना दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।